معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبۃ العلمیہ حائز مملکت سعودی عربیہ دالی اسلامی دعوت سینٹر حائز کی عظیم الشان پیشکش۔ حضرات، یہ پروگرام شہر حائز سعودی عربیہ کے مرکز ثقافتی کے وسیع حال میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء منعقد کیا جاتا ہے، جس میں محترم سید معراج ربانی صاحب فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سعودی عرب اپنا خصوصی خطاب فرماتے ہیں۔ ہر لیکچر کے اخیر میں سوالات و جوابات کا بھی اہتمام خاص ہوتا ہے، جسے ربانی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ جیسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی و مسرت محسوس کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلوں کو بلند فرمائے اور خالص قرآن و سنت کی روشنی میں عمل صالح کرنے اور حق بات کہنے اور سننے کی توفیق بخشے، آمین۔ ناظرین کرام، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پورا شوق دور میں جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت کو ناجائز و حرام طریقے پر الحاد بدینی عریانی و فحاشی بے شرمی و بے حیائی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کے سامنے حلال و جائز طریقے پر دین اسلام بالخصوص کتاب و سنت کی تعلیمات کو دروس و محاضرہ، سیمینار و کانفرنس، تقریر و لیکچر کی شکل میں پیش کریں اور اللہ کی اس نعمت کو حلال کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم آسان سے آسان اسلوب اور سیدھی سے سیدھی زبان میں ہر خاص و عام کے لیے دین کے اہم موضوعات و ٹاپک جو کتاب و سنت کی دلائل و براہین سے مزین و آراستہ ہوں، ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں پیش کریں۔ ربانی صاحب کی ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں حاصل کرنے کا پتہ نوٹ اسلامک دعوت اینڈ گائیڈنس سینٹر، پوسٹ باکس نمبر 2843 KSA، فون نمبر 53347448، فیکس نمبر 543221۔ شکریہ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہفتوں سے ہمارا موضوع ختم محبت رسول سے چل رہا تھا اور آج کا موضوع بھی محبت رسول ہے۔ میں شیخ معراج ربانی رضی اللہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ بیعت پر تشریف لائیں اور اپنے پچھلے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ دوران لیکچر میں آپ کو کچھ سدھار ہوں گے تو آپ پرچیوں پہ نوٹ کریں اور لیکچر کے آخر میں پرچیوں کو دے دیں۔ ان کے شکوک و شبہات ہمارے بھائی برادر معراج ربانی صاحب سے ہم سنیں گے۔ میں آواز دیتا ہوں ربانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. عزیزان گرامی، محترم حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے کہ آج کے اس مجلس میں میری گفتگو کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، لیکن میں پچھلے جو 2 لیکچر آپ کے سامنے میں نے دیے ہیں اس کا موضوع سخن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم. آج میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انداز کیا ہیں، کس طرح سے اور کیا نشانیاں ہیں، کیسے یہ پہچانا جائے کہ یہ شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور کیسے یہ پہچانا جائے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے. آج کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے میں اس ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا. قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے آثار صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دعویٰ، کسی بھی چیز کا دعویٰ، جب ہم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ جو ہے محتاج ہے دلیل کا. کوئی بھی دعویٰ آپ کریں کہ میرا یہ دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ محتاج ہوتا ہے دلیل کا. بغیر دلیل کے کوئی بھی دعویٰ معتبر دنیا کی نگاہوں میں، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی بھی نگاہوں میں کوئی بھی دعویٰ یہ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا ہے. ضروری ہے کسی بھی دعوے کے لیے کہ اس کی دلیل ہو. ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حقیقی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کی محتاج ہے. ہاں، اگر اس کے پاس دلیل ہے تو یقیناً وہ شخص اپنے اس دعوے میں سچا ہے. اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو سب کہیں گے، دنیا کہے گی کہ جناب اس کے پاس دعویٰ تو ہے لیکن اس بات کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی بات جھوٹی. میں اللہ کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں انہی چند نکات کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو بات بتلائی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور اسی محبت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک معاف فرما دے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس میں ایک لفظ اتباع، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اس اتباع کا کیا مطلب ہے؟
इत्तिबा का क्या मफहूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का और मोहब्बत करने की निशानियों में से एक निशानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना भी है। बुनियादी निशानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है। सवाल यह पैदा होता है कि ये इत्तिबा क्या है। इत्तिबा अरबी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं पै दर पे आना किसी चीज का, यानी किसी के पीछे लगना, कोई चीज पैहम चले, पै दर पे चले। पीछे लगना, इत्तिबा का मतलब है पीछे लगना, पीछे पीछे चलना। जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, इसका मतलब है कि ऐ लोगों अपने नबी के पीछे पीछे चलो, जो तुम्हारे नबी कहें वहां उसको करो, और जो तुम्हारे नबी जिस चीज से मना करें उससे बाज आ जाओ। यह है, इसी को इक्तिदा भी कह लें, इसी को इक्तिदा भी कह लें, पैरवी करना, पीछे पीछे चलना। इसी को मुताबात भी कह लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी करना। सब एक ही माने में है, इक्तिदा करना, पैरवी करना, इत्तिबा करना, ये सब एक ही माने में है, यानी पीछे पीछे चलना। मैंने जैसा कि बताया कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत रसूल की निशानियों में से सबसे पहली निशानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, पैरवी की जाए। इसका सबूत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ये मोहब्बत रसूल की पहली निशानी है। आइए कुरान करीम के चंद हवाले मुख्तलिफ सूरतों से, तकरीबन 8-10 सूरतों के हवाले से आपके सामने मैं वो बात वाज़ेह कर रहा हूं। सबसे पहली आयत अल्लाह वहदहु ला शरीक ने, यूं तो बहुत सारी आयतें कुरान करीम में हैं, हर जगह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने मानने वालों को, अपने बंदों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को इस बात की हिदायत की है कि नबी के पीछे चलो, नबी के पीछे चलो, नबी के पीछे। हर जगह कुरान का जहां जहां भी इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है, उम्मत को यही तालीम दी गई है कि अपने नबी का दामन पकड़ लो, अपने नबी के पीछे चलो, अपने नबी की इक्तिदा करो, अपने नबी के अंदाज को देखो, अपने नबी के उठक बैठक को देखो, अपने नबी की तालीमात को देखो, अपने नबी के बातों को तस्लीम करो, चलो। आइए कुरान करीम के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक बात ये भी आप नोट कर लें कि जहां कहीं भी अपने नबी के पीछे चलने का अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हुक्म दिया है, वहां अल्लाह वहदहु ला शरीक ने लोगों को दुनिया के अंदर मुखातब करने के कुरान करीम में 2 अंदाज हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में 2 तरीके से पूरी दुनिया को मुखातब किया। एक तरीका तो यह है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ वो लोगो जो दुनिया के अंदर बस रहे हो, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, हैं, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, ऐ लोगो ये करो, ऐ लोगो ये करो। लेकिन एक तो अंदाज अल्लाह वहदहु ला शरीक का ये है। दूसरा अंदाज अल्लाह तबारक व तआला का यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि लोगों जहां कहीं अल्लाह वहदहु ला शरीक ये कहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तो ये समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला कोई बड़ी अहम बात तुम्हें बतलाने जा रहा है। लोगों को नहीं दावत दे रहा है, बल्कि लोगों में से मखसूस लोगों को निकाल रहा है, खास लोगों को छांट करके उन्हें कोई पैगाम दे रहा है, उन्हें कोई मैसेज दे रहा है, उन्हें कोई तालीम दे रहा है, उन्हें कोई शिक्षा दे रहा है, किसी चीज की तरफ हिदायत और रहनुमाई अल्लाह वहदहु ला शरीक करता है। तो जहां कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, पैरवी, पीछे चलने का जिक्र आप सुनेंगे इन आयात में, वहां हर जगह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब किया है। चुनांचे पहली आयत सुने कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन। सूरह अनफाल आयत नंबर 20। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जब तुम्हारा रसूल तुमसे कोई बात कह रहा हो तो उसकी बात सुन करके मुंह फेर के न जाओ,
मुंह फेर करके, मुंह बना करके, मुंह को बिगाड़ करके मत जाओ, बल्कि ये तो बहुत बड़ी हिलाकत की बात है। तुम्हारा रसूल तुमसे मुखातब हो, तुम्हारा रसूल तुमसे बात करे, तुम रसूल की बातों को सुन रहे हो और सुन करके अनसुन करके इस तरह से भागो। ला तवल्लू, अपने मुंह को न फेरो, अपने मुंह को न फेरो, बल्कि अपने रसूल की बातों को सुनो। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 20 की आयत करीमा। दूसरी जगह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बड़ी अजीब और गरीब बात बतलाई है और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अमालकुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ वो लोगो जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो, ऐ वो लोगो जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। वला तुब्तिलू अमालकुम, और अपने आमाल को बातिल न करो, अपने आमाल को खराब न करो, अपने आमाल को फासिद न करो, अपने आमाल को बर्बाद न करो। देखें अल्लाह तो इस आयत करीमा से खुले तौर पर यह बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, बल्कि उन्हीं की फरमाबरदारी करना, उन्हीं की पैरवी करना, उन्हीं के अहकामात के ऊपर अमल करना हम तमाम मुसलमानों के ऊपर क्या है? वाजिब और फर्ज है, जरूरी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है तमाम मोमिनों के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाते हैं। और इनकी इताअतों से बाहर किसी और की इताअत करने से, किसी और के पीछे चलने से, किसी और की बातों को शरीयत समझने से आमाल जाया और बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने आमाल को जाया और बर्बाद न करो, अपने आमाल को बातिल न करो। तीसरी जगह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने और भी बड़ी प्यारी बात बताई। देखें कि हिदायत का सरचश्मा कहां है, हिदायत का मंबा और मखजन कहां है, हिदायत आपको कहां से मिल सकती है, रहनुमाई सीधी राह आपको कहां से मिल सकती है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने, हमारे और तुम्हारे रब ने ये बात वाज़ेह तौर पे अपने कलाम पाक में फरमाया है और फरमाता है कि वइन तुतीऊहु तहतदू वमा अला रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन। कि ऐ बंदो, ऐ मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर हमने जो रसूल भेजा है, हमने जो अपना पैगंबर भेजा है, अगर तुम उसकी इताअत करोगे, अगर तुम उसके पीछे पीछे चलोगे, तहतदू, हिदायत पा जाओगे। क्या पा जाओगे? हिदायत पा जाओगे, सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, सीधी राह तुम्हें मिल जाएगी, सही मार्ग तुम्हें मिल जाएगा, सही तौर पर वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें सीधी राह मिल जाएगी। अगर तुम अपने नबी की इताअत करोगे, अपने नबी के पीछे चलोगे, तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। वमा अला रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन, और हमने जो रसूल भेजा है उसका काम सिर्फ ये है कि खुली खुली बातें तुम तक पहुंचा दे। बस हमने जो रसूल भेजा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम खुली खुली बातों को, अल्लाह के पैगाम को वाज़ेह तौर पर तुम तक पहुंचाना है। बात वाज़ेह है ना, साफ है ना, इसमें तो किसी किस्म की आयतों में कोई सीधी हिदायत उम्मत को दी जा रही है। अल्लाह अपने बंदों को सीधे तौर पर मुखातब कर रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई बीच में लोचा पोचा नहीं है। सीधी सी बात है कि अपने नबी की इताअत करोगे, हिदायत पा जाओगे। इसी तरह से चौथी आयत, एक और आयत करीमा में, ये आयत जो है सूरह नूर आयत नंबर 54 है। और दूसरी आयत अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सूरह निसा आयत नंबर 23। अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह उसे ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा, ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा, ऐसी जन्नत अता फरमाएगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, नहरें बह रही होंगी। वो खालिदीन फीहा, उसी के अंदर वो हमेशा हमेश रहेगा। मोमिनों, मुसलमानों, गौर करो जरा,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का अज्र और उसका सवाब, उसका बदला अल्लाह वहदहु ला शरीक ने क्या मुकर्रर किया है कि अगर अल्लाह की इताअत करोगे, उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा और ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, ये आबे कौसर की नहरें बह रही हैं, उसके नीचे बहेंगी। और ये भी नहीं कि चंद सातों, चंद लम्हों के लिए तुम उसमें रहोगे, नहीं, बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहोगे, जिसमें दाखिल होने के बाद में फिर तुम वहां से नहीं निकाले जाओगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ज़ालिकल वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ऐ लोगों यही सबसे अजीम कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी मुसलमान बंदा, कोई भी मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाला, अपने रसूल के ऊपर यकीन रखने वाला, कोई ये नहीं चाहेगा कि जहन्नम में जाए। हर एक की ये इच्छा है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी तमन्ना है, उसकी आरजू है कि वो अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। ये जो हम इबादतें करते हैं, बंदगियां करते हैं, कलमे पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं और जितनी अल्लाह तौफीक देता है उतनी अमल करते हैं, दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इनका वाहिद मकसद और एक ही मकसद है, और वो ये है कि हम जन्नत में चले जाएं। बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमें अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो जन्नत में दाखिल होने का और जन्नत में जाने का तरीका अल्लाह तबारक ताला बतला रहा है कि हमारे नबी के पीछे पीछे चलो, हम तुम्हें ऐसे बागात देंगे, ऐसी नहरें देंगे कि जिसके, ऐसे बागात देंगे, ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और यही सबसे अजीम कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मालदार बन जाओ, कामयाबी ये नहीं कि दुनिया में सबसे बड़े तुम्हारा नाम पुकारा जाए, कामयाबी ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चले। कामयाबी तो उस दिन की कामयाबी है जिस दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने बंदों से कहेगा कि ये मेरे महबूब के दीवाने थे, ये मेरे महबूब के पैरोकार थे, ये मेरे महबूब के मुत्तबे और फरमा बरदार लोग थे और अपने दावों में सच्चे थे, इन्हें जन्नत के रास्ते खोल दो, इन्हें उन बागात में दाखिल फरमाओ जिनके नीचे से जहर है। तो ये है असल कामयाबी। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अताते रसूल और इताअत खुदा अल्लाह, इताअत रसूल के ऊपर ये अज्र और उसका सवाब रखा है। इसी तरह से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मोमिनों को एक जगह और खिताब फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और तुम में जो उमरा हैं, हुक्मा हैं, बादशाह हैं, उलाते उमूर हैं, तुम उनकी भी इताअत करो, उनकी भी इताअत करो। और अगर तुम्हें किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तुम्हारा किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए, तुम्हारा किसी मामले, और ये तबई चीज है, ये इख्तलाफात होना और आपस में क्या कहते हैं तनाज़ा होना, ये नागुज़ीर चीज है, इससे बचा नहीं जा सकता है, ये तबई चीज है, फितरी चीज है, ये पैदा होगा। ये ना कोई सोचे कि दुनिया के अंदर इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे या शरई मामलात में इख्तलाफ नहीं पैदा होंगे। इख्तलाफात नागुज़ीर शय है, ये होना है, जरूरी है। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया जब ये चीज जरूरी है और ये इख्तलाफात होंगे, और यकीनन हुए, खुद सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो मदीनतुर रसूल, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाहों के फारिगीन थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने जानिए तलम्मुस को जिन्होंने तय किया था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के पड़े हुए लोग थे, आपने जिन्हें दस्तारे फजीलत अता फरमाई थी, जिन्हें जन्नत की बशारतें खुशखबरियां दी थी, जिनके बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की आयतें नाज़िल हुई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, मेरे सहाबा को गालियां न दो, क्योंकि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह की राह में खर्च करो, और मेरे सहाबी ने अगर एक पाव गेहूं अल्लाह की राह में खर्च किया है, तो तुम उहुद पहाड़ अल्लाह की राह में सोना खर्च करके भी उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हो। तो उस मकाम और मर्तबे के बावजूद भी सहाबे कराम के अंदर इख्तलाफात हुए, और मैं भी बताऊंगा फिर वो इख्तलाफात का हल क्या हुआ, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो है हदीसों के अंदर मौजूद है, तारीख के अंदर मौजूद है, किस तरह से उन्होंने हल किया, वो मैं भी अब बाद में इंशाअल्लाह ताला उसको मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम, बस अगर तुम्हें किसी चीज में इख्तलाफ हो जाए, किसी चीज में झगड़ जाओ, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, ऐ ईमान वालो उन
جھگڑوں کو، ان معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی قرآن اور سنت کی طرف۔ اگر وہ زندہ ہوتے اللہ کے نبی تو جس طرح اللہ کے نبی زندہ تھے تو ان کے دربار میں سارے مسائل حل ہوتے تھے۔ آج وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر آپ کی زندگی میں ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری تھی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تمام مومنین کے اوپر اپنے نبی کی اطاعت اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تب رہا کہ وہ شخصیت موجود تھی، آج ہمارے درمیان وہ شخصیت نہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی